Hello, good morning student. Today we are going to start our new point of this lesson, that is the solar energy. Actually, we are going to hear the how the solar energy is used for the generating electric current. Yes, so let us start about the solar energy for using the generating electric current. So solar energy, it is a basic fundamental source of energy. Yes, and such energy is a totally we have obtained through the nature. Yes, it's a natural source, it's a renewable kind of the source, just and it is a clean source of energy. And we have gets free of cost, and such kind of energy we have used for generating the electric current here. So we are going to the concept of the solar energy. Solar energy is one have a basic and fundamental source of energy. Why? Because I have say here the basic fundamental source of energy, because yes, sun, yes, that is emit the radiations, that is the solar rays, and when the emissions of the solar radiations, yes, in form of the light, yes, okay, that is we have said as a light energy. Actually, these radiations are nothing but what? What is the light? Light is electromagnetic waves, and such electromagnetic waves have a one kind of energy, and we have used such energy for our different kind of the purposes. But do you think about that energy? That time we have get one question: can we get it direct energy? Just we can't receive its direct energy. We receive it from a nature, from the specially producers. Mr. Producer means all green plants. It's okay. I have tried to show in this slide. There is one have a planted. Yes, that is a green plant. Just okay. These absorb this sunlight. Yes, that is a light energy and converts into chemical energy by using the photosynthetic process and prepares food material and they nourish itself, and they complete the total nutrition mode, the total nutrition modes. Actually, other animals in ecosystem, they depends on its, we have learns in a different food chains. Yes, as well as we have learns a different food web, we have gets the idea about this energy. Means these solar radiations is directly absorbed by the green plants, that is the producers, and they producers they nourishes itself by selves, and again other consumers they depends on the food of that producers. Just okay, they it's for the completion their food requirements and obtain the energy there. Means it is a natural and origin of the energy, origin of the energy. So this is a photosynthetic action. Means how the photosynthesis takes place. This is the thylakoids, those are present into the chlorophylls. Just okay, they receive the light energy. Why? Because they consist the chlorophyll pigments. Yes, okay. Into the thyroids, we already learned in a 9th class. Thylakoids are the plate-like structure. They are arranged yes after one another. Just okay. These are one have a bunch of these platelets-like structure. Yes, we have known as a thylakoids here. And inside the thylakoid, there is a presence of chlorophyll material, pigments, and such chlorophyll pigment they absorb the light energy. Again they converts into the yes chemical energy. Yes, okay, that is a photosynthetic process, and in that photosynthetic process, yes, they prepare its
own food material. So actually when this process takes place, we gets the lot of quantity of oxygen also. Means oxygen is also one kind of energy source. Yes, carbon dioxide also we have gets in that photosynthetic process. So actually it is one very important to every living organism for survive well sustained life. That's why, but when you think, that's why before, behind it there is a one source, that is a sun. So we have say as a sun is a natural fundamental source of energy. Sun is a natural fundamental source of energy. So we have go to the next slide. So in that next slide, actually, yes, we have observed, yes, each and every slides we have think on it, just okay, and we have get the just some ideas. We have, after getting these ideas, we have learned the given theory, yes, from your book. We have read it, yes, and we have understood it, the concept of these energies, solar energies, how its energy is used for the generating electricity. Actually, such a sun energy, that is a light energy, we have used in generating of the electric current here. But how you generate the electric current? Yes, in this slide I have shown there are two ways of the generating electric current here. Yes, here A side and this is a B side. In that A side I have shown solar photovoltaic cell, and in B side I have shown to the solar thermal. These are the two ways. By using these two ways, we have generated the electric current by using the solar energy. Actually, I have take some images here, some pictures, yes, okay, and through that pictures, we have get the judgments of this photovoltaic cell here. Yes, okay, in that photovoltaic cell, what is the photovoltaic cell? The photovoltaic cell, yes, it is a one type of this device. It is one kind of the device which used for the purpose of to converting energy forms. Just receive the light energy and convert into, sorry, receive the light energy and convert into electric energy. देखिए बेटा यहाँ पे, yes, I have shown some, that's a arrows here, and these arrows have in form of a, these are electromagnetic waves, and such electromagnetic waves of sunlight, that is a light energy, we have captured it by the particular kind of the device, and that device have a special role. Yes, they convert the light energy into electric energy. They convert the light energy into electric energy. Actually, in that process, yes, we have get the chemical energy. Actually, how we have get the chemical energy means that converted light we have stored in a batteries. We have stored in a batteries, and after the storing it, we have used according to our needs and needs according to our different purposes. So this is one I have another representation I have tried to shown here. So can you get this idea about the solar photovoltaic cell? Solar photovoltaic cell, yes, it is a one kind of the terms in which we have, yes, we have changed the energies one forms to the another forms, one forms to the another forms according to the law of conservation of energy. Actually light energy we have converted into electric energy. Again such converted electric energy we have stored into the batteries in form of chemical energy. So these are one have a just method or the way to obtaining to generating the electric current here. So another way we have generate the electric current here, that is a solar thermal.
तो in that solar thermal, what techniques we have used here? In this technique we have used some panels. Yes, okay, I have shown in this figure. These are one have a panels. We have as a reflector, we have as a reflector they receive the light energy. देखिए बेटा, yes, sun, yes, they regularly show the radiations of the light, radiations or the emissions of the electric rays here. Yes, okay, and such rays is a totally absorbed by this reflector. ये रिफ्लेक्टर क्या करता है, उसको एब्सॉर्ब करता है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है. Yes, according to that name reflector. Just okay. Again, such a reflector, yes, having the absorber tube here, and this absorber tube they absorb the heat energy. Yes, and when heat energy absorbed, that time, yes, solar pipes consist the water, yes, and it convert into the steam, and such a converted steam again we have used for the, yes, to drive the turbines according to the steam power generators. We have learned previous points, just okay, or the previous class we have learned there, that is a steam generators. And in that steam generators, actually how we have produced the steam, or the how we have obtained steam here? Yes, by using the direct sunlight, this okay, and this sunlight is received by the particularly, yes, such established, that is a reflector plates are arranged here with having absorber tube. Yes, and in that absorber tube consisting the water here. When the heat is absorbed through the sun, that time water goes to heat and converts into the steam, and steam have a, that's a kinetic energy, and by using that kinetic energy, yes, we have blowed on that turbines goes to rotate, drive the turbines, and turbines connected to the generators, and generators, what is the function of generator? Mechanical energy converted into electric energy, and such generated electric energy with the grid lines we have supplied to our different purposes. So we have learns here, means actually what you learn from this slide, we have learns here, from using the solar energy we have generate the electric current by two ways. It's very important, just remember here. Yes, which are the two ways? That is a solar photovoltaic cell, another is a solar thermal. These are the two ways. By using these two ways we have generate the electric current by using the solar energy, again we have go to the our next slide. In that next slide actually we have go one by one, that is a photovoltaic effect. What is the photovoltaic effect? Means the photo means that is a photo, it is related to light, देखिए बेटा यहाँ पे एक स्लाइड बताए, इस पिक्चर बताया, यहाँ पे ये सन है, तो सन क्या करता है? लाइट. यस ओके, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना. तो ये लाइट्स क्या करते हैं बेटा? दिस आर इमिटिंग रेज. Yes, okay, these are emitting rays, and these emitting rays, just that is a sunlight, yes, they directly, yes, come in contact with that block content. Just okay, that is a back content here having one device. Just okay, that is a front content of that device. They receive the sunlight, and when they receive the sunlight, that time such light energy it convert into electric energy. We have connect the wire here, and such electric energy we have connected to our different devices according to our needs. That's okay. And you know about the conversion of the energy, means the energy we have convert one forms to the another form, means the electric energy again we have convert into light energy, है ना. यहाँ पे लाइट एनर्जी मिलती है, हमें हीट एनर्जी भी मिलती है, ठीक है बेटा, साउंड एनर्जी मिलती है. Means we have gets, yes, we have completed our different needs, yes, which are used in our daily life. Okay, so do you clear here what is the photovoltaic effect? Means the photovoltaic effect is nothing but that is sunlight energy. Yes, it's convert into sunlight energy, it convert into electric energy. यस, ये देखिए बेटा, यहाँ पे सनलाइट है,
जैसे यहाँ पे एक्चुअली ये सोलर पैनल्स है, यहाँ पे इस डिवाइस के ऊपर ये लाइट एनर्जी यहाँ पे आती है, और जैसे ही लाइट एनर्जी आती है तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी तो ग्रिड लाइन के द्वारा हम उसको उसका अभाव करते हुए अलग अलग पर्पज़ के लिए उसका हम यूज़ करेंगे, है ना बेटा। एक्चुअली तो ये यहाँ पे एक फोटो प्लेट से यहाँ पे, है ना बेटा, दैट इज बना हुआ सोलर पैनल है। जैसे ओके, एक्चुअली ये यहाँ पे रेडिएशंस आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, हीट एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होती है, रिसीव होती है। रिसीव होने के बाद हम यहाँ पे जैसे कि वो कन्वर्सेशंस दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड हियर, बट generated electricity is a DC type energy, is a DC type. What is the DC type? DC is nothing but direct current. DC is nothing but the direct current. समझ में आ रहा है? तो सनलाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू डीसी करंट विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा, यहाँ पे एक डिवाइस है ना। एक्चुअली यहाँ पे हमने सनलाइट लिया और डीसी करंट बना, ऐसा नहीं होता है, ये बनता है, लेकिन वहाँ पे हमें एक डिवाइस यूज करना पड़ता है ना, एक मीडिया होता है। यहाँ पे कौन सा मीडिया बेटा, दैट इज अ फोटोवोल्टिक इफेक्ट, है ना। तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है, तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट इज नथिंग बट दैट इज अ लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे ओके, तो ये जो इफेक्ट दिखाई देता है, यस, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोवोल्टिक इफेक्ट हियर। अगेन वी हैव गो टू द our next slide. In that next slide we have see here the solar cell, because in that photovoltaic effect, yes, device, we have used a particular type of cell here. We have used a particular type of cell. Which kind of cell we have used here, that is a, we have say as a solar cell. We have used as a solar cell, and such a solar cell is made up by the semiconductor. Remember here, solar cell are made by the semiconductor. Example, that is a silicon metal. Example, silicon metal. चलिए बेटा, suppose 1 square centimeter size of a solar cell generates near about 30 milliampere current and 0.5 volt electric potential. Just okay, that is a पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने जैसे कि कंडक्टर के दो जो एंड्स होते हैं उनमें हमें मिलता है, जैसे कि वो उसका वोल्टेज कितना होता है, वोल्ट कितना होता है, 0.5 वोल्ट होता है, और कॉइल में से बहने वाली जो करंट होती है वो कितनी मिलती है यहाँ पे, 30 मिली एम्पियर। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देयर इज वन कन्वर्सेशन मेथड हियर, वी हैव ऑलवेज रिमेंबर इट। यस, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द 9th क्लास, that is 1 ampere is equal to 1000 milliampere, that is a 10 raised to the power 3, ऐसा हम बोलते थे। 1 ampere is equal to the 10 raised to the power -3 ampere, है ना बेटा। ऐसा ये कन्वर्सेशन हमने देखा था। सपोज दिस सेल्स, देखिए आई हैव शोन हियर, yes, in this slide, that is a cell. These are one have a cell which is made up by the silicon, and these are a semiconductor. What is a semiconductor? Semiconductor is nothing but they are not a good conductor or not a bad, yes, having intermediate between them, that is a semiconductor. इसी को क्या बोलते हैं हम, सेमी कंडक्टर। वो एक्चुअली गुड कंडक्टर भी नहीं होता है और बैड कंडक्टर भी नहीं होता है, यस, दोनों के बीच में जो स्थिति होती है ना बेटा, तो वो जो मेटल है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज अ सेमी कंडक्टर। तो यहाँ पे गुड एग्जाम्पल कौन है, दैट इज अ सिलिकॉन मेटल। ठीक है, अभी ये सेल से हम क्या करते हैं, जैसे मॉड्यूल बनाते हैं, है ना, जैसे कि एक प्लेट होते हैं, प्लेट के ऊपर ऐसे सेल को हम अरेंज करते हैं। जैसे देखिए बेटा, हम जैसे ड्राई सेल है ना उसको कनेक्ट करते हैं, है ना, अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद उसका एक पैनल बनाते हैं, दैट्स वी हैव आल्सो मेक द मॉड्यूल देयर, ठीक है, फॉर यूजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली, सच लाइक दैट हियर इज आल्सो वी हैव यूज्ड द, yes, that is a silicon cell, just okay, which is the semiconductor, and such a silicon cell we have arranged on a panel, that is one have module, just okay, and such arrangements of the different module, many modules
yes are connected with each other and showing the array, that is a big panel here. ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अकॉर्डिंग टू द आवर काइंड ऑफ दी वर्क, जैसे कि नहीं अपने काम करने का जो किस काम के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, है ना बेटा। जैसे कि हॉस्टल होते हैं, मेडिकल्स होते हैं या कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना बेटा। तो वहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर जस्ट रिक्वायरमेंट्स, yes, how much energy we have need there, yes, okay, and according to the need of that energy, yes, we have established these panels, we have established this panel. If the need is more, that time we have used the array. If the need, yes, need is have a, yes, that is one of medium level, that time we have used the model. And if the need is have a small requirement, that time we have used the simple cell there. चलिए कभी कभी हम देखते हैं ना, एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है अपने हर एक के घर में शायद होगा, वो इलेक्ट्रिक बल्ब में केवल जैसे हम सोलर में उसको रखते हैं, है ना, सनलाइट में उसको रखते हैं दिन में, और रात में हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको हम इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा बल्ब होता है या छोटा सा एक इक्विपमेंट्स होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है। चलिए बेटा, तो जैसे कि नीड होती है उसी तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पे इसीलिए एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है। चलिए बेटा, इफ वन सिलिकॉन सेल, देखिए बेटा यहाँ पे एक वन सिलिकॉन सेल हैविंग 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया, सच सेल प्रोड्यूस नियर अबाउट 30 मिली एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट एंड 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए रिमेंबर कीजिए, इसको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए लक्ष्य, हाँ, तो यहाँ पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया का सिलिकॉन प्लेट हो तो, है ना बेटा, वो सेल सिलिकॉन सेल हो तो वो कितना इलेक्ट्रिक करंट हमें देता है, नियर अबाउट 30 मिली एम्पियर, जैसे ओके, मिली एम्पियर करंट वो प्रोड्यूस करता है। कितना वोल्ट होता है उसका, नियर अबाउट 0.5 वोल्ट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ दैट कंडक्टर। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। If the area of the silicon cell having 100 centimeter square, then it produces near about 3 ampere electric current and 0.5 volt. Actually, 30 milliampere per centimeter square into 100 centimeter square is equal to 300 milliampere, and 3 milliampere is nothing but 300 milliampere is equal to 3 एम्पियर, 300 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 3 एम्पियर। चलिए, क्योंकि कन्वर्सेशन हमने कैसे देखा था, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू द -3 मिली एम्पियर। इसको रिमेंबर करना है क्योंकि वह लर्न्स इन आवर, यस, दैट इज वन आवर लास्ट स्टैंडर्ड, है ना बेटा। अपने जो पिछले वाले जो स्टैंडर्ड में हमने यहाँ पे उसको क्या किया था, लर्न किया था actually, ठीक है। So again we have go to our next slide. Yes, okay, in that next slide actually we have learns here, yes, arrangements। अभी यहाँ पे हम arrangements देखते हैं। Just actually solar cells are arranged in series, है ना। हमने देखिए इलेक्ट्रिक सेल को सीरीज में अरेंज किया था, पैरेलल में अरेंज किया था, और वहाँ पे हमने लर्न किया था जैसे सीरीज में अरेंज करते तो, हाँ, वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसमें हमने क्या सीरीज जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे रोध होता है, रेजिस्टर होता है, वहाँ पे बढ़ाया जाता है ना बेटा। और जैसे कि रेजिस्टर को कम करना हो तो उसको हम पैरेलल में क्या करते हैं, अरेंज करते थे, वहाँ पे लर्न किया था। एक्चुअली उसी तरह से यहाँ पे सेल न, वहाँ पे हमने सेल यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, सोलर सेल अरेंज करेंगे। सोलर सेल है, ठीक है बेटा। एक्चुअली ये सेल हमें उसी तरह से सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज मीन्स नथिंग बट व्हाट मीन्स द सेल आर अरेंज्ड इन अ, yes, okay, in front, that is a in singles line, that is in front of with each other, just okay, ये सिंगल लाइन में होते हैं, है ना, और एक के बाजू में से एक सिंगल लाइन में उसको अरेंज किया जाता है। द सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज, यस, इट्स शोन इन दिस फिगर। अभी इस फिगर में यहाँ पे पता है एक्चुअली सेल नंबर 1 विच सेल, दैट इज अ फोटो
effective cell here. Just okay, that is a solar cell here. Yes, and such solar cell we have arranged. Actually, when we have arranged it, that time what we have learned here means the potential difference in each cell is the sum of the total potential difference, that is V is equal to total voltage. V is nothing but यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V बताया, that is a total voltage here. Yes, of the series is equal to the V1 plus V2 plus V3 plus V4. यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे देखिए दूसरी वाली यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है, यहाँ में मैंने 4 सेल अरेंज किए है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ऐसा दिया है। जैसे कि यहाँ पे अपने बुक में 2 सेल अरेंज किए तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आएगा, है ना। चलिए अब ये यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, बट obtaining electric current is the same. Yes, is the same to the first cell. Yes, okay, that is it means इसका मतलब क्या होता है, here is no addition in electric current. यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में एडिशन नहीं होता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में हमें एडिशन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट में एडिशन होता है क्या, नहीं। जैसे कि करंट हमें एक ही सेल का मिलेगा, करंट हमें क्या मिलेगा, एक ही सेल का यहाँ पे मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ पे लर्न किया है। एक्चुअली अभी इसके बाद हम दूसरी वाली अरेंजमेंट देखेंगे। इन दैट अरेंजमेंट सेल्स आर अरेंज्ड हियर इन पैरेलल, इन अ पैरेलल। देखिए बेटा, आई हैव टेक हियर द 2 सेल हियर, दैट इज अ which cell, that is a silicon cell, समझ में आ रहा है, that is a solar cell. I have arranged ना पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए दोनों के आमने सामने, आमने सामने, पहले वाला वो आमने सामने था क्या, वहां पे नहीं था, है ना, एक ही लाइन में, है ना, एक ही लाइन में बाजू बाजू में एक ही लाइन में, लेकिन यहाँ पे क्या बेटा, आमने सामने। देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, कंडक्टर है, अभी दोनों कंडक्टर के बीचों बीच यहाँ पे आमने सामने, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपने सेल, सोलर सेल को यहाँ पे अरेंज किया, एंड सच अरेंजमेंट इज नोन एज अ दैट इज अ पैरेलल, है ना, सेल आर अरेंज्ड इन पैरेलल। अभी देखिए बेटा, हम जैसे कि एक कनेक्टिविटी यहाँ पे करते हैं, तो सोलर सेल तो सीरीज में अलग था, पैरेलल में यहाँ पे अलग है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे पोजीशन और अरेंजमेंट इज डिफरेंट हियर। तो व्हेन वी अरेंज द सोलर पैनल यस इन अ पैरेलल, that time generating electric current, yes, however it's generating electric currents we have get it, that time potential difference are made here। कैसे मिलता है यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज रिमेन सेम हियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखिए बेटा, इस दो एंड में, है ना, बोथ एंड्स ऑफ दिस टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर, यस, टर्मिनल्स ऑफ दिस, जैसे देखिए बेटा, इस सेल के टर्मिनल्स में पोटेंशियल जो डिफरेंस मिलेगा ये सेम है, यहाँ पे सेम है, यस, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। जैसे सीरीज में वैसा था क्या, नहीं, सीरीज में हमें बढ़ रहा था, उसकी एडिशन हो रही थी, ठीक है, या लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की एडिशन नहीं होती, यहाँ पे करंट की एडिशन होती है। करंट क्या होता है, यहाँ पे एडिशन होते हुए दिखाई देता है। चलिए इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताए, जैसे कि देखिए बेटा, इफ 36 सोलर सेल, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कितनी सोलर सेल ली है, 36, यानी कि 36 सोलर सेल को मैंने लिया है, एंड ईच ऑफ साइज ऑफ दैट सोलर सेल हैविंग हाउ मच साइज, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर are connected in a series. Yes, in a solar panel it will be the give potential difference of a 80 volt. Yes, and current is a 3 ampere. Yes, अभी देखिए बेटा, में such panels are connected in together generating the electricity or the electric current. Yes, on a larger scale a good solar cells can be the have an efficiency of around near about 50%. देखिए बेटा, 15%, just okay, and it means that if the solar panel receives the power, yes, of the 1000 watt from the solar radiation, the electrical power output from this panel will be, that is 50 watt, 15 watt। कितना watt मिलता है बेटा, that is a 15 watt here। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि करंट बढ़ रहा है, इस करंट का यहाँ पे एडिशन होता है, समझ में आ रहा है। तो ये सोलर सेल इन, जैसे कि सोलर सेल जैसे हम पैरेलल में लगाते हैं, यहाँ पे करंट हमें क्या मिलता है, ज़्यादा मिलेगा, है ना,
सीरीज में लगाते हो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे जैसे कि करंट जो होता है एक ही सेल से जितना करंट मिलता था वही करंट हमें वहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे करंट बढ़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हर एक सेल का वैसे ही रिमेन सेम रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे पढ़ाया। आफ्टर देन वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। इन दैट नेक्स्ट स्लाइड वी हैव यूज्ड द सोलर सेल एंड द सोलर एरे। सो व्हाट इज दिस, चलिए बेटा, तो पहले डायग्राम में हमने देखा था, वहां पे हमने एक सेल देखा था ना, उसी तरह से देखिए बेटा यहाँ पे भी एक सेल है, देखिए एक सेल है, दैट इज वन सिलिकॉन सेल। अब ये सिलिकॉन सेल हम क्या करते हैं, इसको एक पैनल्स के ऊपर है ना बेटा, एक बोर्ड के ऊपर, एक ऐसे सरफेस के ऊपर उसको हम अरेंज करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, देयर आर अ number of cells I have arranged on a same panel. Yes, that time we have say as a module. इसको क्या बोलते हैं बेटा, मॉड्यूल। एंड जैसे मॉड्यूल जब अरेंज होता है उसमें सेल क्या होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, इन अ सीरीज, इन अ सीरीज, रिमेंबर इट। ये क्या है बेटा, सीरीज में अरेंज किए, जैसे ये देखिए सामने सामने ऐसे सीरीज में अरेंज किए, ठीक है। अगेन अभी देखिए जैसे कि ये सीरीज में अरेंज हुए वाले जो मॉड्यूल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स है ना, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हम क्या करते हैं बेटा, उसको एक उनकी सीरीज बनाते हैं। उनके क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने सीरीज बना दी है। तो सच सीरीज इज नोन एज अ स्ट्रिंग मॉड्यूल। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज अ स्ट्रिंग मॉड्यूल। यस, इन अ सीरीज, ए सीरीज में स्ट्रिंग मॉड्यूल हम बनाते हैं। अब ये स्ट्रिंग मॉड्यूल, अभी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत ही ज़्यादा तौर पे चाहिए है ना, ज़्यादा यूज में हमें उसको लाना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे जो मॉड्यूल के जो सीरीज होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, तो मेनी स्ट्रिंग्स वी हैव, यस वी हैव कनेक्ट्स इट, उसको हम अभी कनेक्ट करेंगे। लेकिन कनेक्ट करते समय अभी हम इसमें, अभी इसको बढ़ाना है ना, तो बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए हम इसको पैरेलल में क्या करते हैं, अरेंज करेंगे। देखिए बेटा पैरेलल, देखिए यहाँ भी कंडक्टर है और यहाँ भी कंडक्टर है, और दोनों कंडक्टर के बीचों बीच देखिए बीचों बीच है, ये सीरीज में देखिए सामने है ना। यहाँ पे कंडक्टर का एक ही फ्लो है, एक ही यहाँ पे क्या बेटा लाइन है, सिंगल लाइन है, लेकिन यहाँ पे अभी डबल लाइन दिखाई देती है, इसी पैरेलल, इसको पैरेलल बोलते हैं। तो देखिए जैसे पैरेलल में हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हैं, तो जब ऐसे पैनल हमें मिलते हैं तो ऐसे पैनल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ एरे हियर। समझ में आ रहा है, तो मेनी सोलर पैनल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यस एंड इन पैरेलल, यस दे जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। समझ में आता है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो इट चेंजेस देयर, यस एज शोन इन अ, दैट्स अ प्रीवियस फिगर। जैसे कि पिछले वाली स्लाइड में हमने जो देखा था वही हमें यहाँ पे, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे चेंज होता है, आई में क्या चेंज होता है, ये हमें मिलता है। जैसे कि सीरीज में लगाते तो यहाँ पे हमें आई क्या होगा, वो सेम ही मिलेगा है ना बेटा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पे बदलाव आता है। और जैसे हम पैरेलल में यूज करते तो पैरेलल में क्या होता है, आई बढ़ता है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे बढ़ेगा है ना बेटा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, जैसे आर यूज करते तो we have get the lot of generating electric current here, ठीक है। तो ये हमें मिलता है एक्चुअली। देखिए बेटा ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ सकते हैं हम, पढ़ के इसको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली देखिए बेटा इसमें हमें क्या हो रहा है, तो जो करंट मिल रहा है तो डीसी मिल रहा है, समझ में आता है, करंट कौन सा मिल रहा है, डीसी मिलता है। लेकिन करंट डीसी मिलता है, लेकिन जो डीसी करंट मिलता है तो हम क्या करते हैं बेटा, वो करंट, जैसे कि जो सोलर रेडिएशंस होते हैं केवल हमें दिन में ही दिखाई देते हैं, दिन में ही होता है ना। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस बनते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, दिन में जो हमें डीसी करंट मिलता है वो हम क्या करते हैं, उसको बैटरी में स्टोर करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगेन केमिकल एनर्जी अगेन वो कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना। अभी उसमें हम क्या करते हैं, उसको जैसे बैटरी के द्वारा उसको हम यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी अगेन कन्वर्ट इनटू काइनेटिक, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट टाइम वी हैव गेट दी एसी पावर। वहाँ पे हमें सप्लाई कौन सा मिलने वाला है बेटा, एसी पावर। समझ में आ रहा है, एंड सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यस इज कॉल्ड एज इन्वर्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। अपने इन्वर्टर होता है ना, तो इन्वर्टर में बैटरी होती है, डीसी करंट, जैसे डीसी करंट डायरेक्ट करंट आता है तो डायरेक्ट करंट, जैसे सोलर पैनल हमने देखा है ग्राम पंचायत के जो लाइट्स होते हैं ना, रोड की दो तरफा
है ना। वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े खंभे होते हैं, वहाँ पे पैनल्स लगाए जाते हैं, और पैनल के नीचे जो खंभे के बीचों बीच वहाँ पे डिब्बा दिखाई देता है, उसमें बैटरी कनेक्ट की वाली होती है ना बेटा। तो पैनल सनलाइट रात दिन में पूरा सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, है ना। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगेन इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज stored into that battery again at the night period, just according to our requirement we have use it again, that is a AC supply there, this okay, that is a inverter roles यहाँ पे प्ले करते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पे पता चलता है। एक्चुअली देखिए बेटा, तो ये जो पावर होता है अवेलेबल होता है, यस यस, इन द सोलर सेल दैट इज ए डीसी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा सोलर सेल में पावर कौन सा होता है, दैट इज ए डीसी करंट, यस। एंड इन द applications with the need, that is a DC current, DC power, that's a electric light based on the light emitting diode we have as a lead, हम ऐसे लीड बोलते हैं ना अभी यहाँ पे, जैसे लीड सेल्स, लीड्स के लाइट्स, एंड दी एनर्जी कैन बी द डायरेक्टली यूज्ड, यस, हम यहाँ पे उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फ्रॉम द सोलर सेल, है ना। सोलर सेल से हमें डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशंस है ना। सनलाइट्स केवल हम यहाँ पे दिन में ही उसको हम क्या कैप्चर कर सकते हैं, और रात के समय में हमें सनलाइट्स जो होती है तो ज़्यादा मात्रा में हम इसको या कैप्चर नहीं कर पाते, है ना। चलिए बेटा, ये हमने यहाँ पे देखा है। अगेन वी हैव गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इन दैट नेक्स्ट स्लाइड, yes, there is a block diagram representation here. In that block diagram, yes, of showing the electric generator here. चलिए बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो दैट इज अ यस स्पेशल अरेंजमेंट हियर, है ना बेटा। यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट, ये क्या हो रहा है बेटा, यस, इमिटिंग हो रहा है। अब ये जो डायरेक्ट सनलाइट जब इमिट होता है तो यहाँ पे स्पेशल कंस्ट्रक्टेड पैनल्स आर अरेंज्ड, दोज आर मेड अप बाय दी, किससे बने वाले होते हैं, सिलिकॉन प्लेट से, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ऐसे मॉड्यूल को लेकर पूरे स्ट्रिंग बनते हैं, फिर स्ट्रिंग को उसको कनेक्ट कर कर पैरेलल में हम उसके क्या बनाते हैं बेटा, जैसे कि एरे बनाते हैं। अभी ये पूरे एरेज है, ठीक है, समझ में आता है, सोलर एरे है। अभी ये सोलर एरे क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को रिसीव करेंगे, यस, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज अ डीसी करंट, एंड दिस डीसी करंट इज अ यस सप्लाई थ्रू द ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन के द्वारा हम डीसी करंट वहाँ पे सप्लाई करते हैं, और ट्रांसफार्मर के द्वारा यस डीसी करंट अगेन कन्वर्ट इनटू एसी। समझ में आता है। जैसे देखिए बेटा, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक जो स्टेशन होता है ना, उसी इलेक्ट्रिक स्टेशन में से जो लाइंस निकलते हैं तो 3 यहाँ पे ग्रिड्स दिखाई देते हैं, है ना बेटा। जैसे कि यहाँ पे अर्थ, फेज एंड न्यूट्रल होता है ना। लेकिन जैसे हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए जैसे लाइट हमें एमएससी भी प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे जो ग्रिड्स होते हैं वहाँ पे केवल हमें कितने ग्रिड्स दिखाई देते हैं, एक्चुअली वहाँ पे जो 3 ग्रिड दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अरेंजमेंट अलग से होते हैं। ऐसे बस क्या होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, वहाँ पे पैरेलल होते हैं, जैसे अभी ये, जैसे कि ठीक है। अभी यहाँ पे उसकी ग्रिड लाइन में यहाँ पे डीसी करंट जब आता है तो डीसी करंट के अरेंजमेंट देखिए बेटा, 2 हमें जैसे कि पैरेलल दिखाई देते हैं, एक ऊपर की तरफ दिखाई देता है डीसी करंट में, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर के द्वारा डीसी करंट हमें एसी करंट में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देखिए, एंड दिस इज वन हाउ स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द solar photovoltaic station. This is a first method to generating the electric current here. समझ में आता है। तो देखिए, तो इसी को लेकर हमें क्या करना है बेटा, गूगल्स में जाकर वहाँ पे सर्च इंजन में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और द गैदर द इंफॉर्मेशंस अबाउट द मेजर सोलर फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन, यस ओके, देयर प्लेसेस, देयर लोकेशंस with they are generating electric capacity there, we have find it, yes, it is a one project for you, समझ में आ रहा है। तो देखिए, तो ऐसे यहाँ पे इफेक्ट्स दिखाई देते हैं एक्चुअली। इसके बाद हम अभी दूसरी स्लाइड के ऊपर आते हैं। चलिए अभी दूसरी स्लाइड यहाँ पे क्या है, देखिए दूसरी स्लाइड में हम क्या देखेंगे बेटा, अभी
सोलार, जैसे दूसरा पॉइंट जैसे हमने शुरू के स्लाइड में देखा था ना, इट्स अ टू टाइप, दैट इज वन हैव अ, पहली वाली कौन सी थी, सोलार फोटोवोल्टिक सेल, तो वो हो गया। अभी हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे, दैट इज अ थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट, है ना, थर्मल सोलार और द सोलार थर्मल, है ना, दैट इज अ सोलार थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट हियर। अभी एक्चुअली देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ ऐसे डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो इस डायग्राम में ऐसे कुछ पैनल्स होते हैं। अब ये जो पैनल्स है, रिफ्लेक्टर्स है, तो ये क्या करते हैं बेटा, हैविंग दी जस्ट रिसीविंग द सनलाइट, सन रेडिएशंस, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे एब्सॉर्बिंग ट्यूब्स होते हैं, और उस एब्सॉर्बिंग ट्यूब्स में पूरी तरह से क्या होता है बेटा, वाटर होता है इनसाइड इट। अभी वाटर को क्या होगा, जैसे ये सोलर रेडिएशंस इमिट्स हो गए, है ना, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। अभी ये हीट क्या होगी बेटा, यहाँ पे वाटर जो एब्सॉर्बिंग पाइप्स है, ये क्या करते हैं, हीट को एब्सॉर्ब कर लेंगे, तो अंदर वाला वाटर क्या होगा, हीट होगा, यस, एंड प्रोड्यूस स्टेम। अभी स्टेम बनेगी। अभी जैसे ही स्टेम बनेगी, देखिए बेटा यहाँ पे ऐसे पूरे ये रिफ्लेक्टर्स है, पूरे रिफ्लेक्टर, और बीचों बीच रिफ्लेक्टर के यहाँ पे क्या है, एब्सॉर्बिंग ट्यूब्स है, एब्सॉर्बिंग ट्यूब है, ठीक है। एंड यहाँ पे सोलर पैनल भी लगाए जा सकते हैं, और एब्सॉर्बिंग ट्यूब है। यहाँ पे सोलर पैनल क्या करेगा, एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी, यस, and when the heat energy absorbed that time, yes, water inside the tube consisting water, yes, it goes to the boil and the converts into steam, and such a converted steam we have floats on the turbines, yes, turbines goes to drives, yes, okay, rotates, and when the turbines go to the rotate, yes, generator play their role, that is a mechanical energy converted into electric energy, and such converted electric energy, yes, we have used इट्स फॉर आवर डिफरेंट पर्पजेस, यस, विथ यूजिंग द ग्रिड लाइन्स हियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो सिंपली फ्लो चार्ट भी दिया है, जैसे कि सोलर सेल है ना, ये जो सोलर सेल होते हैं, तो सोलर सेल क्या करते हैं बेटा, सन रेडिएशन को रिसीव कर कर उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या होती है, बैटरी में, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन वो डीसी होगी, है ना, तो डीसी में होती है तो वो बैटरी में कन्वर्ट होती है, तो बैटरी में केमिकल एनर्जी के रूप में वहाँ पे स्टोर होगी, फिर हम उसको यूज करेंगे, है ना बेटा। तो इन्वर्टर क्या करता है, तो एसी सप्लाई को डीसी, जैसे सॉरी, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्किंग ऑन द एसी पावर। जैसे हम अपने जो इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट होते हैं वो पूरे इन्वर्टर को क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं और उसको हमें प्ले करते हैं, उसका यूज करते हैं, है ना बेटा। दैट इज अ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय द सेल टू एसी फॉर्म बाय यूजिंग द इन्वर्टर। इस एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे कि डीसी करंट को एसी कन्वर्टर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डोमेस्टिक पर्पज में, थ्रू द इन्वर्टर। और जैसे ग्रिड लाइन में वहाँ पे कन्वर्टर कौन सा होता है, दैट इज अ ट्रांसफार्मर, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक करंट बनने वाला तो डीसी करंट ही होता है, ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर्स के द्वारा हम उसको अगेन वी हैव कन्वर्ट इनटू एसी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा है। एक्चुअली इसके बाद एक छोटा सा एक समराइज यहाँ पे चार्ट दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे तुम्हें एक काम दिया है, एक प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट दिया है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस, यस, locations of the solar energy power station based on a solar thermal, and another is a solar photovoltaic cell। इसको हमें क्या करना है, उसके लोकेशंस, यस, ये हमें मैप में बताना है, यस, फ्रॉम इंडिया, यस, एज वेल एज देयर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक जनरेटिंग कैपेसिटी वी हैव shown there, ठीक है। एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द पिक्चर्स, यस, collects the different informative accounts, yes, and we have makes the one project there, ठीक है। it's a very important for you, we have do it again, we have think on it। जैसे हमने इंफॉर्मेशन के लिए, चलिए बेटा कुछ यहाँ पे हमें जो हमने डिफरेंट एनर्जी सोर्स तो देखे थे, तो इसमें हमें थोड़ा समराइज करना है। चलिए बेटा अभी समराइज क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ सोर्सेस दिए है ना। तो एनर्जी सोर्स में यहाँ पे कोल दिया है, नेचुरल गैस दिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक दिया है, न्यूक्लियर एनर्जी दिया है, प्लूटोनियम पेट्रोलियम दिया है,
यस, इसके बाद रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि विंड हो या सोलार हो, ऐसे सोर्सेज दिए हैं। अभी हम वर्ल्ड में उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल वर्ल्ड में और इंडिया में ऐसे कंपैरिजन किया है। जैसे कि वर्ल्ड में उसका 41% यूज़ होता है और इंडिया में यहाँ पे 60%। समझ में आ रहा है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर स्टेशन हमें दिखाई देते हैं, एंड दोज आर यस ड्राइव बाय यूजिंग दी coal, burning the coal. This okay, and after the burning the coal we heat the water and convert the steam. That such a thermal power station we have use here. ठीक है, तो this is number is more in India compared to in worlds. This okay, actually again we have go to the natural gases. This okay, and such a source, yes, in worlds, yes, there using percentages here shown 22%. In India only 8%. आफ्टर देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि वाटर को लेके, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, वर्ल्ड्स में हम देखते हैं तो इसका परसेंटेज 16% है और एक्चुअली इंडिया में कितना है, 14 है। जस्ट अब यहाँ पे हम पेट्रोकेमिकल्स को लेकर देखेंगे। वर्ल्ड्स में हम उसको थोड़ा सा सोचेंगे तो यहाँ पे उनका परसेंटेज कितना मिल रहा है बेटा, केवल 4% है। और इंडिया में कितना है बेटा, यहाँ पे 3% उसका यूज़ होता है। रिन्यूएबल सोर्सेस में यहाँ पे विंड है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, इसका यूज़ इंडिया में जैसे वर्ल्ड में देखते हैं तो 6% मिलता है और इंडिया में तादाद अच्छी है, इस 15.7 है। समझ में आ रहा है। अभी हम टोटल कंजम्पशन जब देखेंगे, इस वर्ल्ड में भी 100% यूज़ किया जा रहा है और इंडिया में भी 100% हम इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स अ नेसेसरी टू एवरी वन ईयर, है ना बेटा। सो इट्स बिकम वन फंडामेंटल नीड्स, यस, टू ऑब्टेनिंग द एनर्जी, यूजिंग द एनर्जी। ऐसे यूजिंग द एनर्जी फंडामेंटल है क्या, नहीं, लेकिन अभी जरूरी हो चुके हैं ना, क्योंकि हर एक काम में हम जब देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरेटिवली चैप्टर को लर्न कीजिए। हमने यहाँ पे चैप्टर में देखी बेटा, कुछ सोर्सेस ऐसे देखे थे कि वो नॉन रिन्यूएबल थे और पोल्यूटन कॉजेबल थे, है ना बेटा, वहाँ पे पोल्यूशन बनाते थे। लेकिन कुछ ऐसे हम दो सोर्स देखे हैं, उसको लेकर हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है ना, दैट इज अ रिन्यूएबल सोर्सेस, है ना बेटा। उसका परसेंटेज इंडिया में 15.7% अभी है, तो इसको हम अभी बढ़ा सकते हैं, है ना बेटा। इसको यूज़ करके अपनी एनर्जी की जो ज़रूरत है हम यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल वन देयर। ठीक है, तो ये जो स्लाइड्स है तो सही ढंग से इसको थोड़ा सा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, सही ढंग से लिसन करना है। इस बुक जो थ्योरी है बुक में वो उसी को सही ढंग से रीड करो। रीड करने के बाद समझ में लेना है, कुछ दिक्कत या कुछ कठिनाई हो तो मुझे पूछना है। ठीक है बेटा, थैंक यू। अभी यहाँ पे हम रुकते हैं।